And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 20th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about challenge of mental health issues in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, and it is also important from our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view, especially from the subtopic emotional intelligence point of view. So देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में, समझते हैं. दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत. ये न्यूज़ तो आप सब ने सुनी होगी लास्ट संडे को. एंड अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स सुशांत सिंह राजपूत वाज अंडर डिप्रेशन फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स. And this particular event has highlighted the importance of mental health issues in India. ये एक segment है जो काफ़ी टाइम से काफ़ी neglected रहा है हमारे देश में. Even it has been stigmatized in our country. That is a major problem. अगर कोई इंसान बोलता भी है कि he or she is suffering through a mental issues, then हम समझते हैं कि वो पागल हो गया. हम लूज टंग में ये भी बोलते हैं कि पागल हो गए हो क्या. And if someone feels like seeing some psychiatrist, we say कि पागल हो गए हो क्या. So the point that I'm trying to make that this particular area is stigmatized in our country, and that is why sometimes people do not feel like acknowledging that they are going through some mental stress, they are going through some mental disorder, and that is why sometimes this problem keeps on accumulating, and sometimes people are forced to take extreme steps like suicides. And the author of this article says that this is the high time when we need to take this issue very seriously, and we need to build up an ecosystem in our country to avoid such problems. अब सबसे पहले देखो मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर ये मेंटल हेल्थ है क्या. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, mental health is a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope up with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. तो सरल शब्दों में अगर मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन देखा जाए जो WHO ने दिया है, तो उसका यही मतलब है कि जब एक इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करता है, when one feels good about his or her potential, when one feels his or her worth in society, when one feels that he or she can make good contribution towards his or her community, then we say that that person is in good mental health. लेकिन कभी कभार एक इंसान को जब ऐसा लगता है कि उसकी पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, he or she is good for nothing, he or she is worthless, उनकी लाइफ मीनिंगलेस है, उनकी लाइफ में कोई होप नहीं है, वो कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकते, जब ये सेंस किसी इंसान के अंदर बिल्ड होने लगे तो आप समझ लो कि उस इंसान के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं. दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू पुअर मेंटल हेल्थ, एंड डिप्रेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. जब एक इंसान पुअर मेंटल हेल्थ से गुजरता है तो समझ लो कि उसके अंदर एक सेंस डेवलप हो रहा है, द सेंस ऑफ वर्थलेसनेस. दैट पर्सन इज लूजिंग होप, एंड ही और सी विल स्टार्ट शोइंग द साइंस ऑफ डिप्रेशन विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. तो एक बार जरा कारण समझते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड पुअर मेंटल हेल्थ. देखो, जो सबसे पहला कारण है बिहाइंड पुअर मेंटल हेल्थ इन प्रेजेंट टाइम इज़ मॉडर्न लाइफस्टाइल. जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है. इन प्रेजेंट टाइम, इन मॉडर्न एज, वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया एंड वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप. सो इससे होता क्या है, इंस्टाग्राम, इनसे होता क्या है दैट वी आर नाउ गेटिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, फ्रॉम द रियल पीपल अराउंड अस, फ्रॉम द फ्रेंड्स, फैमिलीज, एंड वी इन जनरल डू नॉट मीट आवर फ्रेंड फैमिलीज इन आवर फिजिकल कैपेसिटी. तो उससे होता क्या है कि जो रिलेशनशिप की वार्मथ है, जो वो फीलिंग्स हैं, दैट इज़ गेटिंग लॉस्ट इन आवर लाइफ इन मॉडर्न डेज, इन द एज ऑफ टेक, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इन द एज ऑफ टेक्निकल गैजेट्स.
Slowly, unknowingly, we get into depression because we start feeling loneliness because of all such technical gadgets around us. We keep on engaged in those gadgets, but slowly we start to develop that sense of loneliness inside us unknowingly, because that relationship, that connectedness, that warmth of relationship is getting missed, is getting lost from our life. और इस कारण से कि इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, जब उसको पता भी नहीं चलता है कि उसको लगने लगता है कि समथिंग इन हिज और हर लाइफ इज मिसिंग। और जो दूसरा कारण है, द सेकेंड रीज़न हाउ दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स आर लीडिंग टू डिप्रेशन, वो है द सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। देखो अभी कैसा है, दिस इज़ द एज ऑफ कैट फिशिंग। कैट फिशिंग मतलब हर इंसान दिखाना चाहता है कि वो कितनी बढ़िया लाइफ जी रहा है, भले अंदर से वो कुछ भी महसूस कर रहा हो। सो दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे हैव प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर कैट फिशिंग। हर इंसान चाहे वो लोन लेकर के भी, कैसे भी, किसी से उधार मांग करके भी वो जा करके यूरो ट्रिप करके आ जाएगा, और फिर वो फेसबुक पे अलग अलग इमेजेस डालेगा, अलग अलग पिक्स डालेगा, और आप उसको देख देख करके डिप्रेस होते रहेंगे कि यार ये इंसान कितना आगे चला गया, ये फ्रेंड फैमिलीज़ के लोग ये कितना आगे चले गए और मैं कितना पीछे रह गया। एंड दैट विल जनरेट द सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, द सेंस ऑफ लूजिंग होप, द सेंस ऑफ लैक ऑफ होप कि अब मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये लोग मेरे साथ ही गए थे, कितना आगे निकल गए, मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। एंड स्लोली पीपल आर फोर्स्ड टूवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, जब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, तो वो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ सच वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज दीज वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स लीड्स टू और दे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर कैट फिशिंग। सो मेनी पीपल डू कैट फिशिंग ऑन सच प्लेटफॉर्म्स एंड दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। आपके पास सब कुछ है आपके आसपास में, बट फिर भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेकार है, बिकॉज रिलेटिवली यू फील लाइक कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बस इस शहर में फंसा हूँ, इस छोटे से शहर में, और देखो लोग दुनिया घूम रहे हैं, एंड दैट वे यू गेट इनटू डिप्रेशन। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं द सेंस सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रॉब्लम क्या है कि वी डू नॉट फील लाइक एक्नोलॉजिंग दिस issue, the mental health issue. We feel like that if we acknowledge, if we say that I am suffering from some mental disorder, तो लोग समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, and that is why because of the stigmatization, because of the discrimination against those people who suffer some sort of mental disorder, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, और जब एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसका प्रॉपर रिकोर्स नहीं ढूंढेंगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, और जब प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो नेचुरली ये जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ती जाएगी, इट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड दिस विल लीड टू serious issues like depression, and sometimes people then take extreme steps like suicides. तो अब ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है सोसाइटी में, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर बिहाइंड पुअर मेंटल हेल्थ। अगर एक डेटा देखा जाए ICMR का, तो अकॉर्डिंग टू ICMR डेटा 14% पीपल इन आवर कंट्री आर सफरिंग विद सम सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन वो फिर भी इसके साथ जी रहे हैं। रीज़न बीइंग उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बोलेंगे कि दे आर हैविंग सम मेंटल डिसऑर्डर, देन पीपल विल थिंक दैट दे हैव गॉन मैड। Third factor is the career driven mindset of the parents. So parents keep on pushing their kids, they keep on pushing their children, and they keep on putting the burden of their ambitions, their dream, their aspiration on the shoulders of their चिल्ड्रेन। अब होता क्या है कि ये जो बच्चा होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता कई दफ़ा, बिकॉज यू नो दैट एवरी चाइल्ड इज़ गिफ्टेड इन डिफरेंट मैनर, नॉट एवरी चाइल्ड इज़ बिल्ट इन वन डायमेंशनल मैनर। तो हो सकता है कि कोई एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको याद दिलाते रहते हैं अगर वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी बेकार है, उसको कुछ नहीं आता, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ही और सी। तो इस तरह से एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस डेवलप करा देते हैं पेरेंट्स खुद। उनको लगता है कि वो बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे एंड अप डीमोटिवेटिंग, दे एंड अप पुशिंग द चाइल्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन बाय टेलिंग देम दैट यू आर गुड फॉर नथिंग एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टडी। कोई जरूरी नहीं कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि दैट चाइल्ड इज वर्थलेस, ही और सी माइट बी गुड एट समथिंग एल्स। लेकिन ऐसा पेरेंट्स बहुत दफ़ा फील नहीं कर पाते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स लीड्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज इन आवर कंट्री। उसके अलावा द एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन्स। देखो स्मार्टफोन्स का एक्सटेंसिव यूज से प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। हमारी बॉडी की अपनी एक बॉडी क्लॉक है, कब उठना है कब सोना है, मोर और लेस हमारी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर आपको अलार्म ना भी लगाएं तब भी आपकी नींद एक पर्टिकुलर टाइम पे खोली जाएगी। अगर आप रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक अच्छी नींद आनी अपने आप शुरू हो जाएगी।
That means we have a body clock. But the problem is that we are so much engaged with our smartphones nowadays कि जब हमें नींद भी आती होती है तभी we keep on forcing ourselves to remain awake, क्योंकि हम कुछ पोस्ट चेक कर रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो इस कारण से जो हमारा बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक है उसको हम खुद ही डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड व्हेन द बॉडी क्लॉक gets disturbed completely, naturally our mind gets into some sort of trouble, and that leads to development of some sort of mental depression that might keep on accumulating and that might force us into some sort of depression. उसके अलावा जो demographic determinants like gender, sense of gender, उस कारण से भी बहुत बार mental health issues develop होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जब होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफिस के अंदर जब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उनको बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, उनको बेहतर पे हाइक नहीं दिया जाएगा, देन दैट लीड्स टू सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, दैट लीड्स टू सेंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। उसके अलावा रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कई दफ़ा रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपने सुन रखा होगा, मैंने भी आर्टिकल कवर किया था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिहार यूपी के लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इस कारण से भी लोगों के अंदर द सेंस ऑफ वर्थलेसनेस डेवलप होता है कि यार हमारी लाइफ बेकार है, हम ऐसे जगह से आते हैं। एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, ऑल सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, दैट वर्थलेसनेस इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, and that poor mental health might get aggravated and that may push a person into depression. अब जरा देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर गुड मेंटल हेल्थ इन आवर कंट्री। तो भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 1982। इसको आप जरूर अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे। दैट वाज द अर्लीस्ट इनिशिएटिव, वन ऑफ द अर्लीस्ट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू एड्रेस पुअर मेंटल हेल्थ इन आवर कंट्री। इसके 3 मेन कंपोनेंट थे। फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पीपल, जो लोग टर्मिनली लंबे समय से मेंटल इलनेस के शिकार हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए। दे मस्ट बी रिहैबिलिटेटेड प्रॉपरली इन द सोसाइटी एंड देयर शुड बी प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तो समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप हो, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव तो हमने रख दिए लेकिन इस डायरेक्शन में कोई कंक्रीट स्टेप लिया नहीं, और इस कारण से हमारे देश के अंदर पुअर मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स चलते रहे, सुसाइड रेट्स बढ़ते रहे, और इस कारण से भारत सरकार को अल्टीमेटली एक अलग से कानून बनाना पड़ा इन 2017 जिसका नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। एंड दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज फॉर पर्सन विथ मेंटल इलनेस। तो देखो इस एक्ट के हिसाब से किया गया है। इस एक्ट से पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ होती ही नहीं थी, साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट होता ही नहीं था। बट विथ हेल्प ऑफ दिस एक्ट नाउ इट हैज़ बीन गारंटेड दैट देयर विल बी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन। तो इसके बेसिस पे अब हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि हर एक इंसान जिसको मेंटल हेल्थ असिस्टेंस चाहिए उसको वो ईजिली एक्सेसिबल हो जाए। उसके अलावा व्हाट वी कैन डू एट आवर ओन लेवल टू मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ, वो भी ज़रा देखते हैं। वी शुड गेट इंगेज इनटू सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, जो प्राणायाम वगैरह हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, उनको हमें करना चाहिए ताकि हमारा मेंटल हेल्थ थोड़ा सा स्टेबल बना रहे। मेडिटेशन इज़ अ गुड अप्रोच टू मेंटेन गुड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, एंड विद दैट वी कैन मेंटेन गुड मेंटल हेल्थ। Some physical exercise like walking is also important in order to maintain good mental health. Eating nutritious meals, avoiding cigarettes, alcohol, drinking plenty of water are some of the approach towards maintaining good mental health. अब अगर कोई मान लो एस्से आ जाए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे, इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे कोई एस्से भी आ सकता है, तो उसका इनिशिएशन, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा हम अलग तरीके से कर सकते हैं। तो जीएस आंसर में तो देखो जो जो पॉइंट्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे आप एक जीएस का अच्छा आंसर लिख सकते हैं, बट इन एस्से यू नीड टू स्टार्ट विद सम डिफरेंट आइडिया। तो एस्से के लिए मैं का आइडिया यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस तरह से एक अपने एस्से को स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज एन एस्से ऑन मेंटल हेल्थ इशू, आप लिख सकते हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर एंड सोल। चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या इंसान हो, ऑल ऑफ अस आर मेड अप ऑफ मैटर एंड सोल। और हम इंसान, व्हाट वी डू, वी टेक केयर ऑफ द मैटर पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। हमारा जो बॉडी है, हम जो हैं, वाट एवर वी आर, वी हैव 2 कंपोनेंट्स। हमारे 2 पार्ट्स हैं, हमारा जो फिजिकल या बॉडी पार्ट है, उसके अलावा हमारा जो मेंटल पार्ट है।
या उसको हम सोल कह सकते हैं, द सोल पार्ट। देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस बिटवीन वी एंड अ स्टोन, एक पत्थर में और हम में कुछ तो अंतर होना चाहिए, एंड दैट डिफरेंस इज द सोल दैट डिफरेंशिएट, क्योंकि पत्थर में भी फिजिकल पार्ट तो है ही, बॉडीली पार्ट तो है ही, बट उसके अंदर वो सोल कंपोनेंट नहीं है, दैट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम दैट नॉन लिविंग थिंग। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, दैट वी टेक केयर ऑफ द मैटर पार्ट ऑलवेज, क्या खाना है, क्या पहनना है, दैट वी आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट, वी आर वेरी चूजी। हम अपने फिजिकल पार्ट के ऊपर बहुत ध्यान देते रहते हैं, बॉडीली पार्ट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। इफ़ वी फॉल सिक वी सून कंसल्ट ए डॉक्टर, अगर पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वी सून कंसल्ट ए डॉक्टर, अगर हाथ टूट गया आपका, यू सून कंसल्ट ए डॉक्टर। और इसके लिए अलग अलग तरह के डॉक्टर्स भी हैं, बट इक्वली इंपॉर्टेंट या इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो है हमारा सोल कॉम्पोनेंट, क्योंकि हम इंसान वी आर मोर सेंसिबल, वी फील मोर, वी आर इमोशनल बीइंग। तो हमारे लिए जो हमारा सोल कॉम्पोनेंट है दैट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट देन आवर फिजिकल कंपोनेंट, और उसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वी कंप्लीटली नेग्लेक्ट दिस सेगमेंट, दिस डायमेंशन, दिस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें खुद ही नहीं पता कि हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अगर हमारा सर दुख रहा है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा सर दुख रहा है, लेकिन हम दुखी होते हैं फिर भी हमें नहीं पता होता है कि हम दुखी हैं और क्यों दुखी हैं, वी डोंट नो। The reason being that we do not invest enough time, enough resource for well-being of our soul. We do not know how to keep our soul peaceful and happy. And someone visiting a doctor for mental health is often stigmatized in our society. अगर कोई बोले कि यार थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो हम बोलते हैं कि पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड। तो ये स्टिग्मेटाइजेशन एक अलग प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पे सोल कंपोनेंट का हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इफ़ यू सी दिस इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस रोबोट एंड अ ह्यूमन बीइंग। ये रोबोट भी सारे काम कर सकता है जैसे कि इंसान करता है, बट एक जो एसेंशियल डिफरेंस है इस रोबोट में और एक इंसान में, दैट वी कैन फील, वी हैव सोल and we need to take care of that component because that is essential component of our life। यही तो अंतर है इसमें और हम में, और हम उस component का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। The problem with us is, the problem with our life is that everyone tells us to live happily but no one teaches us how to live happily। हर इंसान हमें बोलता है, बचपन से सिखाया जाता है कि हमें खुश रहना चाहिए, बट हमें बचपन से कभी ये सिखाया नहीं गया कि कैसे खुश रहना चाहिए, कोई टेक्निक्स नहीं सिखाए गए हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन अब हमें खुद ही ढूंढना है। वी नीड टू लिव हैप्पीली, वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑन आवर ओन बिकॉज नो वन कैन टीच अस नाउ। इस डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव लिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट, जैसा कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए हैप्पीनेस क्लास प्रोग्राम, जहाँ पे क्लास 8 तक के बच्चों को एक हैप्पीनेस क्लास कराई जाएगी और उनकी 45 मिनट्स की इस तरह की हैप्पीनेस क्लास होगी जिसमें उनको खुश रहना सिखाया जाएगा। दीज किड्स विल बी टॉट हाउ टू लिव हैप्पी इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेज इन देयर लाइफ, एंड दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव इन डायरेक्शन ऑफ मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ इन आवर सोसाइटी। और जो बाकी स्टेट्स हैं हमारे देश के, उनको भी इस तरह का इनिशिएटिव अपने अपने स्टेट्स में लाना चाहिए। The next article is taken from economy segment. It is about trade ban on China, not a good idea. And this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखो, recently after Galwan Valley incident where 20 Indian soldiers were killed by Chinese, there has been an emotion across India to ban Chinese product, and this emotion is quite justified. Even I feel like मैंने भी बिल्कुल फैसला कर लिया था कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन ये जो आज आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, दिस आर्टिकल ट्राइज टू आर्ग्यू, दिस आर्टिकल ट्राइज टू प्रूव कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे एकाएक से बैन लगा देना विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। It will be more harmful, more disruptive for Indian economy. Chinese economy won't be much affected. चाइना को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट, इफ़ वी पुट अ कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो ज़रा देखते हैं एक एक करके ऐसा आखिर क्यों होगा। सबसे पहला कारण इन्होंने बताया है दैट ट्रेड डेफिसिट विल वाइडन। तो इस आर्टिकल के हिसाब से कहा गया है कि देखो, अगर हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज करना सडनली बंद कर दिया तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। तो एक बार जरा ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ट्रेड डेफिसिट इज़ द डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ट्रेड विथ अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ओवरऑल देखो, चाइना को हम खाली $16 बिलियन का सामान बेच पाते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, जबकि चाइना लगभग $70 बिलियन का सामान बेच देता है हर एक साल।
इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल चाइना हैज़ अ ट्रेड सरप्लस अगेंस्ट इंडिया एंड इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट अगेंस्ट चाइना ऑफ $54 बिलियन। सरल शब्दों में हर साल चाइना हमसे $54 बिलियन कमाता है। तो हमारे मन में नेचुरल आर्ग्यूमेंट आएगा कि क्यों ना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम खरीदना ही बंद कर दें। जब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम खरीदना बंद कर देंगे तो अपने आप चाइना की कमाई जो इंडिया से होती है वो कम हो जाएगा और चाइना को ये नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना ज़रूर कम हो जाएगा। लेकिन हमें वो प्रोडक्ट तो खरीदना है ही। मान लो अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, अब आप वो चाइना का मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदेंगे। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वो चाइना का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे तो अब आप उसके बदले में कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और मोबाइल फ़ोन, किसी दूसरे कंट्री से ओरिजिनेट होने वाला मोबाइल फ़ोन या सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आप चाइना का ओप्पो फ़ोन खरीद रहे थे। अब वो 10,000 का ओप्पो फ़ोन था, आप चाइना से खरीद रहे थे। अब आपने फैसला लिया कि अब वो चाइनीज़ ओप्पो फ़ोन आप नहीं खरीदेंगे। अब आपने फैसला लिया कि आप सैमसंग का फ़ोन खरीदेंगे। साउथ कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी से खरीदेंगे। अब होगा क्या कि चाइना से हम इतना सारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आर चीपर और उस चीप कॉस्ट में वो हमें रिलेटिवली बेहतर स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। नाउ इफ़ वी गो फॉर सेम स्पेसिफिकेशन इन सैमसंग ब्रांड, जो ओप्पो में हमें स्पेसिफिकेशन मिलता है, अगर वही स्पेसिफिकेशन हम सैमसंग ब्रांड में लेने जाएँ देन वी विल हैव टू पे मोर। अगर हमें ओप्पो में 10,000 का मिल रहा था तो सैमसंग में हमें 13,000 खर्च करना होगा फॉर एग्जाम्पल। तो नाउ अब हुआ क्या कि हमने चाइना से नहीं खरीदा लेकिन अब हमने साउथ कोरिया से खरीद लिया वो मोबाइल फ़ोन सैमसंग का। सेम स्पेसिफिकेशन हमें मिला लेकिन अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ा। तो टेक्निकली हुआ क्या इससे कि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़रूर कम हो जाएगा, नो डाउट। what we are paying China, that definitely will come down, but overall our trade deficit will increase overall in our trade because now we are buying the same product from another company that is from South Korea। तो इस तरीके से अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें और उसका सब्स्टिट्यूट लेना शुरू कर दें दुनिया भर से, तो होगा क्या कि दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑल्टरनेटिव में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, वो तो और महंगे हैं और जब उनको हम खरीदेंगे तो हमें और ज़्यादा पे करना होगा, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट विल गेट वाइडेंड। सो दैट विल बी फर्स्ट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सडन बैन ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। The second problem will be that the poor, lower middle class and middle class will be affected। देखो ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर रिलेटिवली वेरी चीप प्रोडक्ट्स, चाहे वो जिस भी सेगमेंट में हो। फिर से स्मार्टफोन का सेगमेंट ले लेते हैं, ये जो ओप्पो का फ़ोन, ये रियलमी फ़ोन, ये सब रिलेटिवली दे आर वेरी चीप and they are sourced from China, originated from China, and these cheap products are mostly used by lower and lower middle class as well as middle class of Indian society। आप कभी भी हाई क्लास सोसाइटी के लोगों को नहीं देखेंगे, टाटा बिरला को कभी नहीं देखेंगे कि वो चाइनीज़ रियलमी और ओप्पो का फ़ोन लेकर के घूम रहे हैं। सो दिस इज मोस्टली सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, दीज चीपर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय लोअर एंड मिडिल क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी। और अगर हमने इस पर एकाएक से बैन कर दिया देन ऑल्टरनेटिव्स आर कॉस्टलियर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, द सैमसंग phone of same specification will be costlier and now the middle class and lower class will have to pay more for the same product। और इस तरीके से middle class and lower class will be affected if we decide to put sudden ban on Chinese products। हमारे लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। हम जो भी बिजनेस करते हैं, हम जो बहुत सारे लोग, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं जो अलग अलग बिजनेसेस में इन्वॉल्व है और हम तमाम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तमाम हार्डवेयर यूज करते हैं और वो उनमें से कई सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो हैं वो चाइना प्रोडक्ट हैं। और अगर हम एकाएक से इनको रोक देते हैं तो हमारा जो है बिजनेस, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा सप्लाई चेन एक बार के लिए रुक जाएगा। और अगर हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड ओवरऑल वी विल बी निगेटिवली इम्पैक्टेड। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। उसके अलावा द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया विल बी निगेटिवली इम्पैक्टेड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखो कैसे फ़र्क पड़ेगा। जो हम चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी बाई फ्रॉम चाइना आर द इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब वो गुड्स जिनका आगे हम इस्तेमाल करते हैं कहीं फिटिंग करके और फाइनल गुड्स बनाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीनरीज एंड पार्ट्स। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे ग्राफ देखें, डेटा देखें, देन यू विल फाइंड कि हम लोग जो कुछ भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसका 29% वैल्यू के फॉर्म में वी इंपोर्ट इलेक्ट्रिकल मशीनरीज एंड पार्ट्स, 21% वी इंपोर्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स 12%, फर्टिलाइजर 3%, आयरन स्टील 1.5%। सो ओवरऑल वी add up this, then we'll find that more than 70% of products that we buy from China
are intermediate goods, and these intermediate goods are then utilized by Indian manufacturers in India to produce the final goods. उसका हम लाते हैं अपने देश में, उसकी फिटिंग करते हैं और फिर फाइनल गुड्स बना करके उसको कहीं बेचते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मशीनरीज लेकर के आएंगे, उसको फिर पूरे मशीन पार्ट में फिट करेंगे, हम अपने देश में असेंबल करेंगे एंड देन वी विल सेल इट एज फाइनल गुड्स. और अगर हम एकाएक से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देते हैं, वी स्टॉप बाइंग दी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, देन व्हाट विल हैपन, द सप्लाई चेन विल बी ब्रोकन. हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को का जो प्रोडक्शन है वो एकाएक से निगेटिवली इंपैक्टेड होगा. हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे विल बी निगेटिवली इंपैक्टेड. उसके अलावा जो चौथा कारण है वाई द बैन ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इंडियन इकोनॉमी, इसमें जो फोर्थ फैक्टर है वो है दैट द ट्रेड बैन ऑन चाइना विल हार्डली इम्पैक्ट चाइना. देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा दैट वी विल नॉट बी यूजिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स, वो तो यही है ना कि चाइना को थोड़ा सा इकोनॉमिकली निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाया जाए. लेकिन इफ़ वी सी ओवरऑल डेटा देन विल फाइंड कि चाइनाज एक्सपोर्ट टू इंडिया एज परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट इज ओनली 3%. यानी कि अगर 100 रुपये की कमाई करता है चाइना बाई एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट, उसमें से सिर्फ 3 रुपये वो इंडिया से कमाता है, इंडिया के अंदर अपना माल एक्सपोर्ट करके कमाता है. सो विच इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट. जबकि अगर इंडिया का ओवरऑल ट्रेड देखे चाइना के साथ देन इट इज़ 10%. तो अब होगा क्या कि इफ़ आर गवर्नमेंट पुट्स, इफ़ आर पीपल बैन Chinese products, if we stop using Chinese products, then Chinese will also reciprocate, वो भी हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देंगे और हमारा ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. अब चाइना का एक्सपोर्ट टू इंडिया, उसके टोटल एक्सपोर्ट का तो बस 3% है, लेकिन इंडिया का ट्रेड विद चाइना हमारे टोटल ट्रेड का ओवरऑल 10% है. तो अगर हमारा ट्रेड बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है तो both countries will be negatively impacted, no doubt. India and China, if we snap our trade ties completely, then both countries, India and China, will be negatively impacted, but larger impact will be on India because of the percentage of the trade volume that we have with China, but lesser impact will be on China because it exports only 3% of its total export to India. उसके अलावा वी विल लूज क्रेडिबिलिटी, इंडिया विल लूज क्रेडिबिलिटी बिफोर फॉरेन इन्वेस्टर्स. अब देखो होता क्या है दैट अगर हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना है देन व्हाट ऑप्शंस इंडियन गवर्नमेंट हैज़. भारत सरकार को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ करना होगा. अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी है लगभग 20-30%, उसको इंक्रीज़ करके 100%, 200% करना होगा. बट इफ़ वी सडनली चेंज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, then the image of India as a country with stable trade policy will get tarnished. अगर हम रातों रात इस तरह की अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ में को चेंज कर देते हैं, उसको टिंकर कर देते हैं, टेम्पर करते हैं, तो जो हमारे यहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको लगे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कभी भी अपनी ट्रेड पॉलिसी को चेंज कर सकता है. इंडिया डज़ नॉट हैव स्टेबल ट्रेड पॉलिसी और इस कारण से हमारी इमेज ख़राब होगी, और जब इमेज ख़राब होगी देन इट विल हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, व्हाट इंडिया कैन डू. तो इस आर्टिकल में ये बताया गया दैट इंडिया नीड्स टू फ्रेम अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी. हमें 20-25 साल की एक पॉलिसी बनानी होगी एंड वी नीड टू मेक दिस पॉलिसी सेक्टर वाइज इन अ वेरी प्लान्ड मैनर. हमें सेक्टर बाय सेक्टर एक पॉलिसी बनानी होगी कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है. देखो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को चेंज करके और जापानीज़ प्रोडक्ट खरीदना या साउथ कोरियन प्रोडक्ट खरीदना दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू, क्योंकि उस केस में ओवरऑल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा. तो हमें करना क्या है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके इंडियन प्रोडक्ट्स लेकर के आना है. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विद इंडियन प्रोडक्ट्स, और इंडियन प्रोडक्ट्स में भी वो प्रोडक्ट्स जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हों, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के एट पार हों और साथ ही साथ कॉस्ट वाइज भी कॉम्पिटिटिव हों, तभी जाकर के हमारा जो लोअर क्लास है और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा. तो हमें क्या करना है, भारत सरकार को सेगमेंट बाय सेगमेंट टारगेट करना है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ही पहले वो स्मार्टफोन मार्केट पे फोकस करे और स्मार्टफोन मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करे, एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स शुड बी प्रमोटेड इन सच अ मैनर दैट दे शुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट एट पार विद चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स. वो उसी स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट बनाएं, उसी प्राइस पे बनाएं, तब जा करके वी विल बी एबल टू रिप्लेस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स विदाउट हैविंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो इस तरह का एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हमें चाहिए. शॉर्ट टर्म अप्रोच will nothing but jingoism. It will be not more than jingoism. As this article says, the solution lies in one good step at a time. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about solar eclipse. This topic is important from our syllabus, paper 2, geography point of view, especially the different geophysical phenomena point of view. It can also be asked in Science and Tech paper 4.
सबसे पहले सोलर इक्लिप्स समझते हैं। देखो इसका डेफिनेशन है, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून पासेस बिटवीन सन एंड द अर्थ। ड्यूरिंग दिस फिनोमेना द मून ब्लॉक्स द सन रेज एंड कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल ये ओरिएंटेशन देखो, इन दिस ओरिएंटेशन व्हेन मून is placed between the earth and the sun, then this orientation leads to solar eclipse। जब ये मून का शैडो अर्थ के ऊपर पड़ने लगता है तो उसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। अब होता क्या है कि ये सोलर इक्लिप्स दो तरीके के होते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखो, वो एरिया, ये वाला पॉइंट जो बिल्कुल मून के सामने है, दैट पॉइंट that comes in line with the sun, moon and the earth, तीनों का अगर सेंटर मिलाया जाए, सन, मून एंड अर्थ, इनके सेंटर को मिलाया जाए तो जो पॉइंट अर्थ के ऊपर बनता है उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सामने आ गया, मून इसके बिल्कुल सामने आ गया है। और इस पॉइंट पे जो इक्लिप्स होता है, यहाँ पे बिल्कुल सन दिखेगा ही नहीं, इस पॉइंट पे जो इक्लिप्स होता है इसको हम कहते हैं total solar eclipse. It is also known as umbra. So this region, in this orientation, this point will have total solar eclipse, umbra. It happens when sun, moon and earth are being in direct alignment. लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स, जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये ऊपर वाले ये सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ भी सोलर इक्लिप्स होगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि सन का एक पार्ट दिखेगा, कुछ एक पार्ट नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी पार्ट्स दिखेंगे, क्योंकि मून इसके सामने आ गया। लेकिन मून पूरी तरह से सामने नहीं आएगा, ऑन दीज पॉइंट्स मून पूरी तरह से सामने नहीं आएगा। इस कारण से वी विल से दैट दीज एरियाज विल हैव पार्शियल सोलर इक्लिप्स बिकॉज सन विल बी सीन बट ओनली पार्शियली। दिस हैपेंस व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। अब करंट न्यूज समझते हैं। देखो कल यानी कि 21 जून को at some points in India there will be total solar eclipse while at some points there will be partial solar eclipse। असम के अंदर solar eclipse दिखेगा but that will be partial solar eclipse। In Guwahati the eclipse will start at 57 minutes past 10 AM in the morning। जबकि राजस्थान के अंदर कुछ एक पॉइंट्स पे टोटल सोलर इक्लिप्स दिख सकते हैं और वो स्टार्ट होगा समवेयर अबाउट 12 मिनट्स पास्ट 10 AM in the morning। अब ये सारे फैक्ट्स तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम के नहीं हैं, इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 458 to 460. Topic number 458 is about India's foreign trade. तो now USA has surpassed China to become India's top trading partner। देखो 2018-19 का डेटा निकल आया है फॉरेन ट्रेड का, एंड दिस डेटा हैज़ बीन रिलीज्ड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री। यही लेटेस्ट डेटा है, 2019-20 का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ऑफ 2018-19 रिगार्डिंग ट्रेड ऑफ इंडिया रिलीज्ड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, trade of India with US was $87.95 billion while trade of India with China was only $87.07 billion। और इसके साथ ही USA has surpassed and become India's largest trading partner and India has trade surplus of about $16 billion with America। यानी कि इंडिया ज़्यादा सामान बेचता है, ज़्यादा वैल्यू का सामान बेचता है अमेरिका को और कम इंपोर्ट करता है। वी हैव ट्रेड सरप्लस वेयर एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वी हैव ह्यूज ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट अगेंस्ट चाइना। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 459 is about masala bonds. Masala bonds are bonds issued outside India but denominated in Indian rupee rather than the local currency. Unlike dollar bonds where the borrower takes the currency risk, masala bond makes the investor bear the risk. In 2015, International Financial Corporation, which is an institution of World Bank Group, issued masala bond of rupees 3.5 billion rupees to be used for private sector investment that will address climate change issues in India. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 460 is about income tax for NRIs. So definition of NRI has been changed in our country by budget 2020. Till financial year 2019-20, an NRI was one who visited India and would be considered as a resident if spent 182 days or more in the previous year in the country, in addition to an aggregate stay of 365 days or more in the preceding 4 years। लेकिन अब ये बदल दिया गया है डेफिनेशन। Now according to budget 2020, the threshold limit for stay in India to be considered as an NRI is 120 days, not 182 days, and budget 2020 provision seeks to
tax income of non-resident Indians who are not paying any taxes in other jurisdictions. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 455 to 457 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 458 to 460 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.